part here is carbohydrates by the mass distribution, as you can see. And after carbohydrates, we have proteins. Then after proteins, we have the 10.5, that is nucleic acids. So these are the most important topics. Now, there are certain topics that I will say if you are preparing for biomolecules, okay, then at least if you want sure short questions, then the sure short question will be coming from in carbohydrates, we have the reactions of glucose. There are certain reactions of glucose which tell you something about the structure. So from those reactions, we conclude the structure of the glucose. Both these structures, the structures which tell you about the open chain 6-carbon structure and also the ring type of structure, there are certain reactions that is not given by glucose. And from there, we deduce that we will have a ring type of structure also of glucose. So that is one of the most important topic, very small topic. You can spend like half an hour on it, and for sure you will be getting at least one marker from that topic. Okay. If I have compared the papers, and that is the only topic which has been really consistent in the sense that 90% chances are there that that question is going to come. For example, if you remember 10th standard, then there was this question of prove root 2 irrational or prove root 3 irrational. So it is that level of question that it is going to be there in your question paper. Okay. So please don't forget that particular topic, because when we learn a certain chapter, I really don't have that I don't really give that much importance to a certain topic. But as the examinations come near, I tell the students, okay, fine, this is the topic that you cannot miss. Just like if you have seen in solutions chapters, I have emphasized a bit on colligative properties. That is the last topic, and it is one of the toughest topic that is going to be there in your paper. And one topic that is generally missed, which is the easier topic, it is ideal, non-ideal solution in the chapter solution. Okay, so these topics are these topics are such topics which are going to be there in the examination. Okay. So moving towards the question, we have seen it. Now moving towards the question, basically there are certain things, if you are going to revise biomolecules, you should see it is basic definitions. I hope all of you are very much aware. You don't need much repetitions or much time on learning this, that what is polysaccharide, what is monosaccharide, what is disaccharide, and there's certain examples. Okay. So those definitions are there. I'm not going to mention them, but the important things are the structure of glucose, and the reactions from which we deduce it and reactions. Next is the structure of some disaccharides such as sucrose, maltose, and lactose, and structure of the starch, amylose, amylopectin, and these type of things. Okay. Now, when I say structure, then in glucose and fructose also we can say you have to remember the whole structure. In the disaccharide thing, you have to remember the monosaccharides, what are monosaccharide, and the glycosidic linkage that is present. ठीक है कि आपके पास C1C4 है या C1C6 है या C1C2 है. Those linkages you have to remember. In same for the case of structure of polysaccharides also. Here also you have to learn only what is the monomer units, what is the monomer, and what are the linkages. Okay? It is not the complete structure. You don't have to remember the complete structure. Important point is you have to remember the monomer, and you have to remember what type of linkage is present in polysaccharides. Okay? I hope this is clear. Now, definitions such as what is polysaccharide, or what is monosaccharide, what is disaccharide, what is the glycosidic linkage. These things are important. One important thing is also okay, what was that? I just really got into my mind and I missed it. In carbohydrates, glucose structures हो गया. ठीक है, forget it. Bismillah. I really cannot remember it. Maybe somewhere in the questions we will see that. Okay.
And चलिए ठीक है, when we have started here, so I will start with the questions of carbohydrates, and I will be starting with MCQs, and then I will be slowly moving towards 2 markers and 3 markers mainly, because most of the 1 marker questions are already included in those 2 markers and 3 markers. ठीक है, so starting with MCQs. I hope you have revised a bit. If you have not revised, sorry, just this is the first question. The reducing and not reducing sugar, है ना? You cannot miss that topic also. Reducing and non-reducing sugars. ठीक है, so these are also important. ये बस ऐसे रट मत लीजिएगा reducing sugar और non-reducing sugar क्या होते हैं. The times are changing. सीधा आपको remembering वाले सवाल नहीं पूछ के they can ask you regarding that what does it mean by reducing sugar. So what are reducing sugar? That definition can also be asked. Non-reducing sugars. So उसमें भी आपको पता होना चाहिए that they are able to reduce tolerance to agent of spherical solutions. ठीक है. So I've got one answer, and I will start my timer for this. 30 seconds time will be given for the first question. Iram, you can attempt the next questions also. Mm, 30-second timer. Okay, fine. We are getting some answers. ठीक है. So yeah, for the first question, I think time is almost up. Which of the following is a non-reducing sugar? इसमें से जो non-reducing sugar है, it is sucrose. ठीक है. Sucrose is a disaccharide, which is what? It is going to be a non-reducing sugar. आगे आपके पास the glycosidic linkage involved in the linkage of glucose unit in amylose. Amylose part of starch में क्या linkage होता है? हाँ, इरम जी सही है. It is C1C6 beta linkage. No, sorry, C1C4 alpha linkage, not beta linkage, my bad. C1C4 alpha linkage is present in the glycosidic linkage. Which of the following sugar is known as dextrose? अब this is like conceptually completely factual question. अगर किसी के नजर से गुजरा है then they can answer, otherwise सिर्फ याद करने की चीजें हैं. Anyone who has answered थर्ड का शायद इरम ने आंसर किया है. Glucose is known as dextrose. A option is correct. Alpha D positive glucose and beta D positive glucose are what? Geometrical isomers, enantiomers, anomers, or optical isomers. अब यहाँ पे आंसर है that is anomers. If you go through these things, alpha D and beta D, these are what? These are anomers. चलिए. Now moving on, we have sucrose is a non-reducing sugar. We have just seen that, as you can see, this 2023 and in 2020, है ना? So repeated questions case में आप इसको रख लीजिएगा. And we have seen just that sucrose is a non-reducing sugar, so it is going to be a true statement. And sucrose has glycosidic linkage. This also is a true statement, but so does maltose, and so does any other polysaccharide, whether it is disaccharide or oligosaccharide, it is going to have glycosidic linkage. So glycosidic linkage is not really is it really the answer that it is a non-reducing sugar? Tell me, guys. Yeah. Same. So in this case, sucrose, it has glycosidic linkage, but इसका लेना देना नहीं है non-reducing sugar से, right? So the correct option is going to be what? Both assertion and reasons are true statements, but reason is not the correct explanation of the assertion. अच्छा. Can anyone tell me why sucrose is a non-reducing sugar? थोड़ा सा एक लाइनर का भी है तो आंसर दे दे.
Because it cannot give positive test for Fehling intolerance region. हाँ, दैट इज करेक्ट, ठीक है, बहुत सही। लेकिन मेरा मकसद पूछने का ये था कि स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो ये रिएक्शंस नहीं शो करता है। जी, ठीक है। तो थोड़ा सा बस ऐसे ध्यान लगा देंगे तो आपको आ जाएगा समझ में कि इसमें इवन दो सुक्रोज जो है ना, मतलब किसी में भी अगर सीएचओ यूनिट हुआ, एल्डिहाइडिक यूनिट हुआ, ठीक है, अगर आपके पास एल्डिहाइडिक यूनिट, फ्री एल्डिहाइडिक यूनिट हुआ, ठीक है, देन इट इज गोइंग टू शो व्हाट द फेलिंग टेस्ट एंड द टॉलरेंस टेस्ट, दोनों के वो रिएक्शन शो कर देगा। बट क्योंकि सुक्रोज के अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, या फिर इवन फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता अगर बॉन्ड तोड़ के हम बना दे, दैट इज वाई इट इज नॉट शोइंग एनी, इट इज शोइंग नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, इट इज नॉट, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट कैन नॉट रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट एंड द फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर था, इस वजह से हमने ये सवाल कर लिया। ध्यान रखिएगा, इसके पास इट डज नॉट हैव द फ्री एल्डिहाइडिक यूनिट, दैट इज व्हाई सुक्रोज इज नॉट एबल टू, इट इज नॉट एबल टू reduce the tolerance reagent or the Fehling solution, ठीक है। चलिए, moving on towards the next questions. Let me see. ठीक है, we don't, I'm not going to take too much of one marker question because one marks में generally repetition हो जाएगा, and पहले 2 और 3 markers ले लेते हैं, and in 2-3 marks also you will be having 1 mark questions itself, ठीक है। कोई भी सवाल है वो 2 मार्क्स का नहीं होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स इज आल्सो वन ऑफ दोस चैप्टर। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है, गिव द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज 1, 1 मार्क्स का वो हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कंफर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, है ना, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप। अब ये 1 मार्क्स का हो गया और ये दूसरा मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स। तो ये भले ही एक सवाल है, लेकिन है ये कितना, दिस इज एक एक मार्क्स का ही सवाल है ये, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाँ ठीक है, वेरी गुड, गिव द रिएक्शन, यू हैव टू गिव द रिएक्शन, सीएचओ वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके इट इज गोइंग टू गिव यू ऑक्साइन, ठीक है। ऑक्साइन में क्या होगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सारा का सारा वैसे ही रहेगा, जो सीएचओ, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वहां पे, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या होगा, सी डबल बॉन्ड एन, और क्या होगा बताइए, ऑक्साइन में क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, आंसर आना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर का ये तो, NH2OH. NH2OH, तो यहाँ पे क्या बचा, Z क्या हो जाएगा, OH, राइट, दिस इज ऑक्साइन। अब भले ही इसके साथ और बाकी चीजें जो ग्लूकोज की लगी रहती है वो ग्लूकोज की लगी रहेंगी, है ना, एक हाइड्रोजन भी साथ में रहेगा इधर, ठीक है, बट दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। ये आपके पास दिस इज ऑक्साइन, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कंफर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एल्डिहाइड, बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देता है, एंड बोथ ऑफ दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ, बोथ ऑफ दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, द कार्बोनिल कार्बन्स, ठीक है। डिफाइन ऑलिगोसैकेराइड्स एंड इन्वर्ट शुगर, अब यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड्स, आई होप आप लोग कुछ आंसर दे पाए, प्लीज इन द चैट गाइस, टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड, जिसमें कितने मोनोमर्स होते हैं, हाउ मेनी मोनोमर्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ मोनोमर्स दैट वी शुड हैव ऑलिगोसैकेराइड में, if we are going to hydrolyze oligosaccharide then they will have, तो आपको कितने मोनोमर यूनिट मिलेंगे, 2 to 10, वेरी गुड, 2 to 10 monomer units of carbohydrates you are going to get. And what is invert sugar, invert sugar, invert sugar होता है GF, क्या होता है, GF, याद रखिएगा इसको, GF क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्ट शुगर, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, हाउ वी आर गेटिंग दिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फ्रॉम सुक्रोज,
ठीक है। सुक्रोज को क्या करना है, सुक्रोज वी हैव टू हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ like acid and enzyme. These are the two things which can hydrolyze sucrose, and once you hydrolyze the sucrose you will get equimolar mixture of glucose as well as fructose. इसी को हम लोग इनवर्ट शुगर बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली देयर इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं, लेकिन सुक्रोज जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज राइट को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सोल्यूशन है वो उसको उल्टे डायरेक्शन रोटेट करता है, दैट इज व्हाई देयर इज एन इन्वर्जन हैपनिंग। ठीक है, तो वो एक अलग मसला है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जीएफ फ्रॉम सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर के लिए क्या है, जीएफ फ्रॉम सुक्रोज। Now write the reaction showing the presence of aldehyde group and primary alcohol. ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शंस आप देख लीजिए। एज आई टोल्ड दिस इज वन ऑफ द व्हाट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ना चाह रहे हैं, द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब ही रिएक्शन होता है, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बिकॉज इन केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो इफ यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर केमिस्ट्री तो उसमें रिएक्शंस होना ज्यादा लाजमी है। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हाइड्रोक्सिल अमीन वाला रिएक्शन था, है ना, तो रिएक्शन विद क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन विद NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, और ओ नहीं वेट अ सेकंड, ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए हो जाएगा ना, माय बैड, ठीक माय बैड, सॉरी सॉरी। एल्डिहाइड के लिए वी आर गोइंग टू यूज, हाँ ठीक राइट टर्म, वी आर गोइंग टू यूज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से क्या मिलेगा, Br2, इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर, और ब्रोमीन वाटर से हमको क्या मिल जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड COH, इसका ये मतलब है इट मींस दैट वी आर हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप। यू हैव टू राइट द कंप्लीट रिएक्शन, है ना, ग्लूकोनिक एसिड आपको मिलेगा इसमें। अच्छा एक चीज हम आपको बता देते हैं, इट इज फाइन इफ यू इवन राइट द रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन को लिख दिया है बिल्कुल, दैट ग्लूकोज है प्लस यू आर हैविंग Br2 एंड देन यू हैव मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ COH एंड एवरीथिंग, दैट्स आल्सो फाइन। even if you write it that when glucose reacts with mild oxidizing agents such as bromine water, it gives gluconic acid, if you remember that word, or the aldehyde group is converted to carboxylic acid, आपको अपनी बात पहुंचा देनी है। ठीक है, फाइन। नाउ फॉर प्राइमरी अल्कोहल व्हाट वी हैव टू डू, प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या करेंगे, यस, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, saccharic acid, very good. So when we are going to use dilute HNO3 which is relatively a strong oxidizing agent, इसमें आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, एंड इट शोज दैट एल्डिहाइडिक से भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाएगा, एंड प्राइमरी अल्कोहल इज आल्सो गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आपको क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, दैट मींस यू आर हैविंग व्हाट, अ प्राइमरी अल्कोहल आल्सो इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए वी हैव एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन, जिससे आपको एक ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट मिलता है, एंड दैट पेंटा एसिटेट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH group, and after that when we do dilute HNO3 then it shows that okay fine, one of the alcohol is also primary because that alcohol is also getting converted to carboxylic acid. Now enumerate the reaction of glucose which cannot be explained by its open chain structure. अब ये cyclic structure के क्या evidences हैं, उससे ये सवाल है जी, बताएं। Any answers for here? Since it is a 2 mark question, तो आप इसमें बस दो reactions के नाम लिख दीजिएगा। NH2OH वाला हाइड्रोक्सिलामीन, बट हाइड्रोक्सिलामीन का ग्लूकोज के साथ नहीं, वो मतलब आगे रिएक्शन होता है ना, तो चलिए ठीक है, आई विल टेल यू। पहला तो इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 से ये रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट, तो इसमें अभी एक सवाल हो जाता है वेदर द एल्डिहाइडिक ग्रुप वो क्लोज चेन में है या फिर ओपन चेन में है। सेकेंड रिएक्शन इज दैट इट डज नॉट गिव स्किफ्स टेस्ट। Skiff test is given by all the compounds which have the aldehyde group. Skiff test में क्या होता है, पिंक कलर होता है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास कराया जाता है तो पिंक कलर खत्म हो जाता है, एंड व्हेन यू ऐड एल्डिहाइड टू इट वो पिंक कलर रीगेन कर लेता है, दैट इज स्किफ टेस्ट, इट इज नॉट गिवन। थर्ड जो है आपके पास, द थर्ड रिएक्शन इट डज नॉट गिव इज द पेंटा एसिटेट जो हम लोग फॉर्म करते हैं ना आफ्टर द रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, दैट पेंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद
hydroxylamine. So we will write something like this: glucose pentacetate doesn't react with NH2OH. NH2OH से ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है. सो आई थिंक 3 रिएक्शंस आर क्वाइट इनफ, क्योंकि 2 मार्क्स का सवाल है, 2 भी चलेगा आपके लिए, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज इनुमरेट व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज एंड माल्टोज. अब देखिए यही स्ट्रक्चर में ही आ गया है ना, अब ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है. अब लैक्टोज का अगर आपको मोनोमर पता है देन यू कैन इजीली आंसर. जी, लैक्टोज किस किस से बना रहेगा? लैक्टोज का थोड़ा सा आसान है. अगर किसी को याद हो तो चैट में बताएं. चलिए ठीक है, लेट मी आंसर. बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी galactose. ग्लूकोज एंड galactose, ठीक है. Now if you ask me, sir, is it important if we don't write beta d glucose and beta d galactose, then I will say that it would depend on the examiner then, ठीक है, कि आपको वो कितने मार्क्स थे. And that marks will, I hope it varies from some partial marks to full marks. Hopefully अगर आप galactose और glucose लिख दें तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी मार्क्स नहीं मिले. आई थिंक galactose has galactose, GALACTOSE होता है, ठीक है, galactose. गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज. ये भी उससे वही स्ट्रक्चर की बात आ गई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज? एनी आंसर्स गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस? स्टार्च और सेल्यूलोज में क्या डिफरेंस होता है? Hmm. बेसिक डिफरेंस तो उसके मोनोमर में ही होता है ना, एक में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, दूसरे में अल्फा डी ग्लूकोज. एंड हाँ ठीक है, ये सारी दैट इज करेक्ट. स्टार्च हैज अल्फा डी ग्लूकोज और सेल्यूलोज हैज बीटा डी ग्लूकोज, है ना. एंड इफ यू आर हैविंग अल्फा डी ग्लूकोज तो उसमें इवेंचुअली जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा दैट विल आल्सो बी अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो आपके पास बीटा वाला होगा उसमें बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा. तो मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है दैट स्टार्च में होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज में होता है दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है. अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चंस. अब ये तो हमने बता दिया, इसको आप करके ही जाना है, ठीक है, बिना इसके आपका मतलब चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है. ये देखिए HCN Br2HI, सेम थोड़ा सा उल्टा करके इसमें सवाल. राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन्स द फॉलोइंग straight chain 5 alcohol and aldehyde as carbonyl group, ठीक है. फिर से what happens when alpha D glucose is treated with the following reagents. So this is one of the, हम बोल रहे थे ना, it is very important. आप इस चीज को देख के समझ आइए कि लगातार यहाँ पे 2021 हुआ, 2019 और 2019, and then if you go above here 2020 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, and 26 if you take 2014 बहुत पुरानी जमाने की बात होगी, छोड़ दीजिए इसे. Give the hydrox 2023 once again, fine. Even though this may be in different sets, but फिर ये सवाल जरूर आया हुआ है, ठीक है. चलिए, सो सवाल रहेगा, ठीक है. प्लीज आप लोग इस चीज को मान के चलिए that जो रिएक्शंस हैं उससे जरूर बस जरूर सवाल रहेगा. नाउ नेक्स्ट इफ वी सी, और डेफिनेशंस की बात हो तो डेफिनेशंस आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा. सी फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन्वर्ट शुगर, ऑलिगोसैकेराइड्स, इस तरह के सवाल आ गए तो बहुत अच्छा. आई होप ये जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स अगर प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेशंस को देख लीजिए. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन्वर्ट शुगर, ऑलिगोसैकेराइड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीस टर्म्स. रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत होंगे आपके पास, ठीक है. अब देखिए
आई एम गोइंग टू जस्ट गो थ्रू दी वन मार्कर्स दैट हैज बीन आस्क्ड। अब क्योंकि वन मार्कर पूछा नहीं जाता है, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट डिस्कसिंग इट, लेकिन इसको बस एक आप सरसरी तौर पे देख लीजिए सर, है ना। एंड ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट। आई कैन पेस्ट इट हियर। So these are some questions. अब ये इसमें रिपीटेशन बहुत होगा। नेम द डाइसैकराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। चलिए देखते हैं, आंसर आ जाए जल्दी से। कौन सा होता है जिसमें दोनों? हाँ वेरी गुड, दैट इज माल्टोस, है ना। सुक्रोज का तो पता है आपको, जीएफ मिलेगा। माल्टोस से क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लैक्टोज से नाम में ही मतलब लैक्टोज से क्या मिलेगा? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज एक आपका बेसिक है जो कि रहेगा ही रहेगा। एंड राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू मोनोसाइक्राइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आसान सवाल। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? तो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कार्बोनिल दैट इज कीटोनिक ग्रुप होता है। Structural difference between starch and cellulose, repeated question, as you can see. Write the products obtained after the hydrolysis of lactose. We have just discussed it कि lactose मिलता है और glucose मिलता है। ये सेम सवाल और में आया हुआ है, ठीक है। 2019, 2016। Name the carbohydrate present in liver, muscle and brain. ये जरा बताएं जरा, इसका ये थोड़ा नया सवाल है। Name a carbohydrate present in liver, muscle and brain. हाँ एकदम सही है। बायो वाले स्टूडेंट थोड़ा आंसर कर सकते हैं इसको। अच्छा एक ही आंसर आया है, ठीक है। तो याद रख लें ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। नाउ हाउ इज स्टार्च स्टोर्ड इन स्टार्च? ये इस तरह का भी एक सवाल आया था, हाउ इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो उसमें भी आपको जो आंसर देना है वो ग्लाइकोजन के इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? दैट इज जीएफ, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। पॉलीसैकेराइड्स, इसमें आप लिख दीजिएगा 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपको मोनोमर यूनिट्स मिलेंगे। स्टार्च लिख दीजिए आप, या फिर अमाइलोज, स्टार्च की जो टाइप है अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। और यू कैन राइट सेल्यूलोज आल्सो, है ना। चलिए अब आपके पास और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। दी बहुत जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना वो इस चीज को दे रहे हैं कि आप रिपीटेशन देखिए जरा सवालों का। सवालों का आप रिपीटेशन देखिए, किस हद तक सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अब आप यही सवाल अगर सिर्फ करके चले जाए ना अच्छे से, लेकिन ठीक है, कुछ तो आपको इसमें समझना पड़ेगा, कुछ को आपको याद करना पड़ेगा। आपने अगर प्रीवाइक्यूज देख लिया है तो आपको याद करने वाला जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाएगा बस, ठीक है। चलिए राइट द प्रोडक्ट ऑफ राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HNO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पता ही चुके हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकराइड यूनिट? चलिए ये थोड़ा आंसर कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ए, माल्टोज इज बी, फ्रक्टोज इज सी एंड ग्लूकोज इज डी। जी। So first one, may it reacts with dilute HNO3, right? To give saccharic acid, not concentrated. नहीं तो देखिए, अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं होगी ना। मतलब अगर वो कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करता और डाइल्यूट पूछ लेते तब तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। मेक सेंस इधर? Yes. ठीक है, तो ये आपको Okay. सैकरिक एसिड ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हाँ 15 का आंसर करें। ये तो आंसर आ जाना चाहिए जल्दी। ABCD, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकराइड? डाइसैकराइड कौन सा है इसमें? आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ जाए, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे क्या बात है, माल्टोज भाई, इतना तो माल्टोज का आपने बताया था कि दो ग्लूकोज यूनिट डाइसैकराइड, तो वो ना होगा, वो तो ऑलिगोसैकराइड। ऑलिगो क्या, वो तो पॉलीसैकराइड्स में आ जाएगा। स्टार्च, राइट है ना। Yeah. जी, तो माल्टोज इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट द प्रोडक्ट ऑफ डी ग्लूकोज व्हेन इट रिएक्ट्स विद NH2H। इंपॉर्टेंस आपको बस बताना है और कुछ नहीं। Which one of the following is a monosaccharide? Then here starch, maltose, cellulose. Fructose is monosaccharide. Which of the two components of starch is water soluble? हाँ ये जरा था थोड़ा, मतलब अंदरूनी सवाल आ चुका है। तो स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कोई बायो वाला बताए।
हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम ले लिया था। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, है ना। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज सॉल्युबल इन वाटर? तो कौन सा होता है? अमाइलोज। अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब आपकी तैयारी भी होती ही जा रही है व्हेन यू आर सीइंग दिस वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट जो हमने स्लाइड्स में जो मतलब क्लासेस ली थी, उसमें आई हैड डिस्कस, ये सारी चीजें आ चुकी थी उसमें, ठीक है ना। इफ यू गो थ्रू द स्लाइड्स आल्सो, देन आल्सो यू विल बी कवर्ड। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द रिएक्शन ऑफ, अच्छा ये फिर से वही सेम सवाल है। फॉर्म्ड एंड ट्रीटेड विद HI, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एनोमर, एनोमर क्या होते हैं? टू कंपाउंड्स which differ only in the डैश कॉन्फ़िगरेशन। कौन से कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं? यस, करेक्ट, वन, C1। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। एनोमर्स जो होते हैं, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इनवर्ट शुगर, ये हम लोग ने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं इस चीज पे, है ना। चलिए, मूविंग ऑन, ये दिस इज ऑल द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द लास्ट 10 years फ्रॉम द टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के सारे सवाल हमने देख लिया। एक से लेके दो तीन चार पांच हो गए, देन आई स्किप द 1 मार्क्स, उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। 6 से लेके आपका ये हो गया 22, देन वी स्टार्टेड विद 23 से लेके आपका 31. So across 31 questions in the last 10 years, an average of 3 you can see. Now moving towards the next part, जो कि है आपके पास प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ प्रोटीन्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल द MCQs। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रेफर्स टू कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। बीटा प्लेटेड शीट कौन से स्ट्रक्चर को रिफर करता है? यस, करेक्ट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा याद नहीं क्या बच्चों को? क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, ये क्या हो गया? दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, ये तो DNA का पार्ट हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे ये क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन का होता है, पॉलीपेप्टाइड्स आर व्हाट? प्रोटीन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज A और अल्फा हेलिक्स है B, ठीक है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और अल्फा हेलिक्स क्या है? अल्फा हेलिक्स इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या तो आपके पास ऑप्शन ए होगा या दी ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी, ठीक है। दूसरे में देखते देखते डीनेचुरेशन किसमें? डीनेचुरेशन इज इन द डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर वही रहता है, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। Amino acid which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are known as, बोलो भाई क्या होता है? 35th नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कोशिश करें गाइस, कम से कम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आंसर तो। नहीं नहीं इरम, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना। थोड़ी सी तो गड़बड़ी हो गई। देखिए, हाँ हाँ, जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल है ना, वो हमने लिखाया हुआ था। इफ यू रिमेम्बर कि जो स्लाइड्स वाले क्लास था, उसमें हमने बताया था एसेंशियल का मतलब एसेंशियल इन डाइट, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मींस नॉन एसेंशियल इन डाइट, ठीक है। तो जो भी आपके पास अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी, तो वो एसेंशियल इन डाइट हो गया ना, ठीक है। तो विद पर्सपेक्टिव ऑफ द डाइट, डाइट से पर्सपेक्टिव से सोचिए, दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है भाई जो बॉडी को जो बॉडी खुद बना लेता है अमीनो एसिड, वो ज्यादा जरूरी होगा, तभी तो बॉडी खुद बनाता है। ये जहन में आती है ये चीज, ठीक है। जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल को, बहुत सारे बच्चों के इसमें दिमाग में आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा ना, लेकिन मैक्सिमम के बच्चों में यही आता है कि जो अमीनो एसिड
the amino acids which are synthesized by the body, they must be more important. Okay, that is the first impression when we say essential amino acids. But that's not the case. Essential means essential in diet, non-essential in diet. So essential in diet will be those which cannot be prepared by the body. Important are each of them. सारे के सारे ही important. All the amino acids, the 20 amino acid natural occurring amino acid that is present in our body, all of them are important. बट एसेंशियल का मतलब वो हमारे डाइट में रहना जरूरी है. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपको फिर से एक दो बार जहन में ले आएंगे. whenever you are revising again biomolecules and you read essential amino acid, non-essential amino acid, then you will repeat in your head essential in diet and non-essential in diet. Essential in diet cannot be prepared by the body. Non-essential in diet are prepared by the body. The helix structure of protein is stabilized by, जरा आंसर करें इसका. जी हाँ. The helix structure of the proteins, it is stabilized by hydrogen bonds. पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन, आसान सा सवाल है, प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट विटामिन रबर नहीं. अमीनो एसिड्स आर एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक न्यूट्रल, ये बताइए जरा. 38 का आंसर क्या होगा? हाँ, इरम करेक्ट. इट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर. व्हाई? बिकॉज इसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और एक NH2 अमीनो ग्रुप भी होता है. सो इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट विद acid, तो NH2 group activate होके it will act as a base. If you add it into any base, then the carboxylic acid group will be activated and it is going to act as an acid. ठीक है, तो न्यूट्रल नहीं होता है. न्यूट्रल इन द सेंस कि न्यूट्रल ना ही एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा ना ही बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा, एम्फोटेरिक दोनों के साथ ही रिएक्शन शो करेगा. ठीक है, नाउ दीज आर सम ऑफ द MCQs. और ठीक है, देयर आर फ्यू मोर, इसको हम ले लेते हैं. Now, albumin is a globular protein polypeptide chain coils around to give a straight chain. ठीक है, तो albumin is a globular protein. ये fact based question हो गया है ना. It's completely fact based. अगर किसी को याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो फिर वो भूल जाए. ठीक, लेकिन क्या ऑप्शन सही है इसमें? अच्छा, इरम has answered. So the first statement is a true statement. और ये सेकंड स्टेटमेंट कम से कम आप ना खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा आप लोग अब बताएं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ आप आंसर करेंगे. ये रीजन वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस चीज को. ठीक है, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, ट्रू और फॉल्स. आप रीजन के बारे में बताएं, इज इट ट्रू और इट इज फॉल्स. ठीक है, लुक एट द लैंग्वेज दैट दे हैव रिटन. आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ रहेंगे ठीक से जरा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. चलिए प्लीज, आई नीड आंसर्स. टाइमर ऑन करेंगे तब होगा क्या आंसर. सबसे आना चाहिए ट्रू और फॉल्स, कुछ तो बोले. ठीक है, चलिए टाइमर भी ऑन कर दिया है हमने. 30-second timer with voice countdown. Six, five, four, three, two, one, 0. 30 seconds हो गया. ठीक है, वो मेरा साउंड ऑफ था तो आप लोगों को आवाज नहीं आई. हाँ ठीक है, चलिए. मदीहा एंड मरियम हैज आंसर्ड एंड दैट इज वेरी. आंसर करना, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर? सफिया, तारीफ, कृष्ण प्रिया, ऑल ऑफ यू शुड आंसर. एटलीस्ट इंग्लिश के हिसाब से तो आप कुछ ना कुछ ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं ना. यस, वेरी गुड. फॉल्स स्टेटमेंट है. अ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स अराउंड. कॉइल का मतलब ही क्या हो जाना होता है? घूम जाना. ठीक है, टू गिव अ स्ट्रेट चेन, दैट इज कंप्लीटली इट इज अ ऑक्सीमोरन. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. कॉइल भी कर जा रहा है और स्ट्रेट भी हो जा रहा है, कैसे हो सकता है ये? अनकॉइल दिखा रहता तो कोई बात होती. ठीक है, दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज व्हाट इट इज, फॉल्स. तो आप लोग प्लीज माइंड को ऑन करके रखेंगे. अगर आपने तैयारी नहीं भी की लेकिन पूरा ब्रेन के साथ आप जाए, है ना. ऐसा नहीं कि आपने मतलब ऐसे कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं किया हुआ ना कि केमिस्ट्री का दिमाग चलता है सिर्फ. सारी चीजें आपका एक्टिवेट रहना चाहिए whenever we are going to give the examination. कि मतलब कम से कम निकाले और आंसर कोई छोड़ के नहीं आइएगा. कुछ ना कुछ लिख के जरूर आ जाइएगा ट्रू फॉल्स वगैरह में, मतलब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं.
अब क्योंकि रीजन इज फॉल्स, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। अब आप लोग आंसर दें, ठीक है। असर्शन ट्रू आ गया, रीजन फॉल्स आ गया, अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। यस, तारीफ करेक्ट, वेटिंग फॉर अदर्स। इरम ने आंसर कर लिया है, तो इरम ना करें आंसर। बाकी डेबोरा, कृष्णप्रिया, मदीहा, मरियम खातून, सफिया जी, ठीक है। कम से कम आपको असर्शन रीजन के सवाल में, जब आपको असर्शन और रीजन के बारे में पता चल जाए, तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होपफुली आप लोगों को नहीं होगी इंशाल्लाह, है ना, कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। चलिए, एन अल्फा हेलिक्स इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, ये फिर से आ गया है, फीचर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो दैट मींस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज रिगार्डिंग अल्फा बीटा, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस ग्लोबुलर प्रोटीन, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट इट इज, ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर केस में आ जाएगा, फाइब्रस ग्लोबुलर वाला जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। अगेन आई एम गोइंग टू स्किप द वन मार्कर्स एज ऑफ नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द टू मार्कर्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू वन मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अब आई थिंक थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड्स वाला फंस जाएगा, वन मार्कर को थोड़ा छोड़ देंगे अभी हम लोग। आई विल मूव टू न्यूक्लिक एसिड्स आफ्टर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। चलिए, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का क्या होता है, थोड़ा दो वर्ड एक वर्ड में कुछ आंसर अगर आप लोग कर पाए, किसी को अगर याद हो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हाँ, वेरी गुड। Denaturation of protein is basically due to the change in native structure, due to change in native structure, and this leads to, which leads to loss in biological activity, loss in biological activity, biological activity उसकी खत्म हो जाती है उस वजह से। What is the effect of denaturation on the structure of protein? तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो 1 डिग्री होता है, दैट मीन्स द एग्जैक्ट चेन्स हैं, these are not ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं नहीं, वो सही बात नहीं लिखी है आपने। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो सीक्वेंस में तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वो पेप्टाइड लिंकेज होता है ना। जो आपका मेन बैकबोन स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो कभी चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ द पेप्टाइड चेन, नॉट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। Okay. सो यस, मेक सेंस है। Yes. ठीक है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, आपके पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और इवन क्वार्टरनरी जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। नाउ राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन, ये फिर से वापस से ग्लूकोज वाला आ गया है ना, ये मतलब आ जा रहा है आपके अमीनो एसिड्स में भी, ये ग्लूकोज आ जा रहा है जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस वाला है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो लिंकेज कौन सा होता है, इट इज पेप्टाइड लिंकेज, है ना, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। डिफाइन द फॉलोइंग डीनेचुरेशन, हम लोगों ने देख लिया। एसेंशियल, अब देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड व्हिच आर एसेंशियल इन डाइट एंड नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड as well as the amino group, right? One difference between alpha helix and beta pleated sheets, beta pleated structure of the proteins। बताइए अल्फा हेलिक्स के बारे में, वन डिफरेंस बस बोला है, कुछ ज्यादा नहीं बोला है। अल्फा तो बस सिंपल हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल होता है, और बीटा प्लेटेड शीट हैज, बताइए किस तरह का शीट लाइक। बहुत ज्यादा ही आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसका कैसा होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आगे चले, और अगर आपको और कुछ लिखना है तो अल्फा हेलिक्स के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि जो हेलिक्स ऐसे करके मौजूद होता है ना, तो हेलिक्स में आपके पास दिस इज हेलिक्स, और इसी हेलिक्स के अंदर आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा,
So in some terms we can say that it is इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक ही शीट के अंदर आपके पास, सॉरी, एक ही हेलिक्स, एक ही स्ट्रैंड है. इन वन स्ट्रैंड इटसेल्फ वी आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, यू हैव वन शीट लाइक दिस, द अदर शीट इज लाइक दिस, और इन दोनों के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. ऑल्सो समटाइम्स इट इज, कोई आपके पास एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, एंड इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. सो दिस इज इन सम टर्म्स वी कैन से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. नाउ एज आई वाज सेइंग, ये ग्लूकोज वाला जो सवाल है ये सब जगह पहुंच जा रहा है. दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अमीनो एसिड सो डिस्कस्ड, राइट. वन डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना. तो ये आपके पास, अच्छा. तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के पेपर बनाने में मेहनत नहीं होती है, इन द सेंस कि राइट. यहाँ पे एक सवाल था HNO3 वाला कहीं, चलिए ठीक है, HNO3 वाला तो नहीं, लेकिन अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई 2018 में पूछा हुआ है. और अगला सवाल, राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट ऑफ प्रोटीन, ये 2023 में पूछा हुआ है. ठीक है. सो नॉट इवन देयर इज, मतलब सीक्वेंस का भी चेंज नहीं है. एक तो अमीनो एसिड पहले पूछा, बाद में राइट वन डिफरेंस. तो वर्ड्स का डिफरेंस तो है ही नहीं जब सीक्वेंस का डिफरेंस नहीं है तो. ठीक है. तो जब उधर मेहनत नहीं करे लोग, तो आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना. ठीक है. डिफाइन प्रोटीन्स एंड क्लासिफाई देम इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप. ये बताइए जरा कौन सा होगा क्लासिफिकेशन. एक तो डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन करना है उसको पहले आपको. तो व्हाट आर प्रोटीन्स, शॉर्ट में अगर कोई आंसर दे पाए. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना. सिंपल हो जाएगा, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक. अब क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप. तो दो तरह के होते हैं अगर आप लोग को याद हो. एक होता है फाइब्रस एंड दूसरा होता है ग्लोबुलर, राइट. फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, वेरी गुड. ठीक. फाइब्रस और ग्लोबुलर के इसमें अगर आपको कुछ एग्जांपल्स अगर आ जाए ना, तो देखिए, एक तो हम बोलेंगे ना, बाल को याद रखें हमेशा. ठीक है. फाइबर्स में आपको समझ में आना चाहिए हेयर जो होगा आपका, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. अब जो प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होता है उसका ट्रीटमेंट भी होता है. शायद आप लोग सभी को बताओ, कहीं सैलून वगैरह में जाते हो, केराटिन करा लीजिए सर, केराटिन बोलते हैं सैलून वाले, यस. है ना. क्रेटीन, तो क्रेटीन का होता है बाल में, तो क्रेटीन इज अ प्रोटीन. ठीक है. ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, ग्लोबुलर में आप एक चीज याद रख लीजिए, इंसुलिन. इंसुलिन आसान सा है ना. रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बार आप लोगों ने यूज भी किया होगा इस वर्ड को. ठीक है. सो केराटिन एंड इंसुलिन आप याद रख लीजिए. फाइब्रस और ग्लोबुलर हो गया. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये पुराना है. पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है जरा बताइए, पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा. हम्म. किन दोनों के बीच होता है. एक अमीनो एसिड का आपको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरा अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच में जो लिंकेज होता है उसको क्या बोलते हैं, इट इज गोइंग टू बी नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बिटवीन द टू मोनोमर यूनिट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, है ना. दो मोनोसाइक्राइड के बीच में जो लिंकेज होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत आप लोग को यहाँ पे नहीं है. तो हल्के हल्के शब्दों में अगर हम बोले, देन फाइब्रस प्रोटीन आर गोइंग टू बी लीनियर. ठीक है. लंबे लाइक लॉन्ग चेन्स होंगे यहाँ पे. ठीक है. और जो लिंकेज होगा इसमें लीनियर लिंकेज होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, इट इज गोइंग टू बी क्रॉस लिंक. दाएं बाएं आगे पीछे सब तरह से क्या हो जा रहा है, लिंकेजेस आ जा रहे हैं. ठीक है. और फाइब्रस प्रोटीन की अगर आप बात करें, इट इज नॉट, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे ये, दैट दिस इज नॉट सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है. और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. आई थिंक टू डिफरेंसेस आर इनफ एक मार्क्स के लिए. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज रिलेटेड टू प्रोटीन. पेप्टाइड लिंकेज कर लिए हम लोग डिस्कस. प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. डीनेचुरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, दिस हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज ज्यादा पूछ लिया, वो एग्जाम्पल ज्यादा पूछ लिया है. ठीक है. तो अब एग्जाम्पल में आपको कुछ कुछ, यानी कि गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी कि दो एग्जाम्पल आप कम से कम याद करके रखें, देन इट विल बी इजी. किसी को कुछ याद है, एसेंशियल के कुछ याद हो तो बताएं.
ठीक है, हम हाँ वैलिन और ल्यूसीन मतलब हमको थोड़ा ज्यादा याद है, वैलिन एंड ल्यूसीन, दीज आर एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या जाएगा? नॉन एसेंशियल में आई थिंक एक एलेनिन होता है जिस prepared on its own, and I think one of the glutamic acid होता है, I think that is going to be prepared on its own, ठीक है। so examples आप लोग मतलब याद करके आपको जाना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इवन आई विल लाइक, हम आपको बता देते हैं, कंफ्यूजन है, आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कुछ चीजें जो है मतलब हमने ऐसे बैठ के कभी भी रटा नहीं है, like while studying chemistry, valine or leucine, it has some other reasons why I remember this. But for non-essential amino acid, because we have to take in the diet ना, तो वो ज्यादा थोड़ा सा वैलिन हो गया, एलिनिन हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा याद रखा है हमने। अदरवाइज नॉन एसेंशियल उतना हमें याद नहीं, ठीक है। इवन सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हमको याद नहीं। वैलिन और ल्यूसिन इस वजह से याद है बिकॉज जो आई थिंक ये प्रोटीन होता है ना विच वी यूजुअली टेक, जो इंडियन डाइट में होता है, दाल भात में, दाल में जैसे लोग बोलते हैं ना ये होता है बहुत ज्यादा, इट इज rich in protein, even though it is not very rich in protein, it has protein if I compare it with other things that we eat, that is चावल, rice। राइस में तो कुछ भी नहीं होता है, in comparison it has proteins, but main component उसमें भी carbohydrates होता है, and also some of the amino acids are generally not fulfilled in our Indian diet। तो उसको अलग से लेने के लिए either you have to be a non-vegetarian या फिर you have to include curd, ठीक है। अगर आप दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं then those things are fulfilled, at least you have to drink milk or something like that। So I think leucine is one of those bad amino acids जो आपको नॉर्मल जो इंडियन डाइट है उसमें नहीं मिलता है, ठीक है, वो इस वजह से शायद हमको याद है। नेक्स्ट वी हैव सम अदर क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आगे बढ़ते हुए न्यूक्लिक एसिड्स है, तो न्यूक्लिक एसिड्स में लेट मी सी, चलिए बहुत ज्यादा सवाल न्यूक्लिक एसिड्स के इससे नहीं है, सो आई थिंक वी कैन डिस्कस न्यूक्लिक एसिड्स। तो बिना बोले ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह जो है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डीएनए एंड आरएनए, है ना। द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल इज चेन कंसिस्टिंग ऑफ heterocyclic base, pentose sugar and phosphate group, that is completely true। Nucleotides and nucleoside mainly differ from each other in the presence of phosphate group। क्या ख्याल है गाइस? देखिए दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, व्हाट अबाउट द रीजन स्टेटमेंट, ये तो सही है आपका पहला वाला। What about the next reason state? रीजन कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, मतलब अगर आप लोग को याद नहीं तो हम बता देते हैं, देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बस वही फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस रहता है। फॉस्फेट देखिए एस के बाद टी आता है, ठीक है, तो एस में फॉस्फेट नहीं होगा, पीओ4 यूनिट नहीं होगा। आपका न्यूक्लियोटाइड जो साइड एस टी आप जो हम जो बोल रहे हैं उसको समझ लीजिए जरा, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, उसके बाद बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में पीओ4 यूनिट होगा, ठीक है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस हियर। यहाँ पे उन्होंने बस बोला है कि डिफरेंस जो होता है दोनों में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज ट्रू। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि अगर इफ यू आर यूजिंग द असर्शन स्टेटमेंट तो उसमें बिकॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज अ फैक्ट, है ना। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Which the base which is present in DNA but not in RNA, and this is important क्योंकि ये एक डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए के इसमें। जी हाँ सही है, करेक्ट है, इट इज थाइमिन। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, जी वेरी गुड। न्यूक्लियोसाइड मत बोलिएगा बिकॉज न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए तो उसमें न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है ना, लास्ट वाला कंपोनेंट न्यूक्लियोसाइड के बाद जो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये देखिए आ गया न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, क्योंकि इसमें बस फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा, बाकी दोनों चीज रहेंगे, तो नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, आई होप काफी जल्दी ये हो जाएगा कंप्लीट। वी हैव सम 2 marks and 3 marks questions। राइट, टू डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। एक आप तो क्या ले दीजिएगा, एक तो ले दीजिएगा दोनों की स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस क्या होता है, एंड आफ्टर दैट एम आई ऑडिबल क्लियरली, कैन समवन कंफर्म दिस वेरी क्विकली?
Yes, sir. ठीक है. So the next difference that you can write is on the nitrogenous basis कि जो कि हम लोगों ने अभी ये सवाल किया, थाइमीन जो है वो डीएनए में मिलेगा आपको, लेकिन आरएनए नहीं, आरएनए में नहीं मिलेगा. ठीक है, यू कैन राइट दैट डिफरेंस. नो. और हाँ, एक और डिफरेंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है ना. दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेन डिफरेंस जो आपको याद रह सकता है. गिव रीजंस फॉर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग. पेंटा एसिडिटी, ये वापस से फिर से आ गया, ये आपको कहाँ पे ये आपके पास सारे ही इसमें आ चुका है. एक बार हम लोगों ने तो देख लिया वहां पे जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, फिर अमीनो एसिड पढ़ने आया तो वहां पे भी आ गया, प्रोटीन्स पढ़ने आया तो यहाँ पे भी आ गया, है ना. सो अमीनो एसिड बिहेव लाइक एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट, वो ज्विटर आयन का केस लिख दीजिएगा, इसमें ज्विटर आयन होता है. ठीक है, अमीनो एसिड में ज्विटर आयन देख लीजिएगा, सवाल नहीं आया बट इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी टेकन रेगुलरली इन डाइट, ये विटामिन का पोर्शन है. अगर आपको आंसर चाहिए, देन आंसर इज क्वाइट सिंपल, यहाँ पे लिख लीजिए इसको क्योंकि यहाँ पे आ चुका है. मस्ट बी टेकन रेगुलर वाटर सॉल्युबल डाइट, है ना. तो वाटर सॉल्युबल डाइट क्या होता है? What water soluble? Water soluble vitamins must be taken regularly in diet because क्योंकि वो water soluble होता है, they are excreted in urine, and because it is water soluble, ठीक है, that's why it is excreted in urine, and hence you have to take it once again. ठीक है, आपको दोबारा से लेना पड़ेगा. ठीक है. सो वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए ये रीजन है, बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, वी हैव टू टेक इट रेगुलरली इन द डाइट. द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इसका क्या रीजन होगा? बिकॉज एटीजीसी, है ना. ए का किसके साथ होता है? टी के साथ. और जी का किसके साथ बॉन्ड होता है? सी के साथ. व्हाट इज ए? ए इज एडेनिन, टी इज थाइमीन, जी इज गुआनिन, है ना, और सी इज साइटोसिन. ठीक है. सो वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. दैट इज बाय डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक. चलिए. सो कुछ पोर्शन तो ऑब्वियसली रह गया, सारा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं. एंड आगे हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हो चुके, बायोमोलिक्यूल्स ऑलमोस्ट हो चुका है, एंजाइम्स, विटामिन्स, वो सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, बट रेयरली उनसे सवाल आता है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीस टॉपिक इटसेल्फ. एंजाइम्स, विटामिन से एक एक मार्क्स का कभी सवाल आ जाता है आप लोग के इसमें, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उससे कोई भी सवाल नहीं आया. ठीक है, पढ़ के जाइएगा लेकिन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर डिस्कस करने से पहले एंजाइम्स एंड विटामिन वाला पोर्शन डिस्कस कर लेंगे जरूर से. सो हैलोअल्केन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीन, एबीसीडी टाइप, ये तो सारा ऑर्गेनिक हो गया. डीएनए फ्लो कोऑर्डिनेशन. सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विथ, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इससे, क्या नाम है इसका, सॉल्यूशन इलेक्ट्रो या केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, थोड़ा सा इन द चैट आप लोग अगर थोड़ा अपना राय मशवरा दे दे, देन आई विल पिक अप. ठीक है, एक बहुत ही फास्ट राय आ चुका है, इलेक्ट्रो. ठीक है, इलेक्ट्रो में 2 वोट्स आ चुके हैं. आई एम स्टिल वेटिंग. अरे इलेक्ट्रो में तो आप लोगों का ना दिल खुश हो जाएगा, सही सच बता रहे हैं. मतलब इलेक्ट्रो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आ जाइएगा, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि मतलब हम किससे डर रहे थे, किस चैप्टर से हम डर रहे थे. ठीक है. अरे भाई और तो बोले, डेबोरा, कृष्णप्रिया, मदीहा, बी, इलेक्ट्रो. अच्छा ठीक है, ए बी सी डी कर रही है मरियम अभी. डेबोरा, इलेक्ट्रो. ठीक है, ओके फाइन. 1 2 3 4 हो चुका है, एक और वोट हो गया तो आई थिंक 2 3 4. हाँ, तो ऑलरेडी इट इज मेजोरिटी, है ना. तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी हम लोग लेके चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज द नेक्स्ट chapter for discussion, and electrochemistry will take at least 2 days and at most 3 days. ठीक है, क्योंकि